ہو سکتی ہیں اور ہیں، لیکن اس روایت میں امام نے 5 چیزیں ذکر کی ہیں، جن میں سے آج کے دن اربعین کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ یہ وہ عظیم زیارت ہے کہ جو مومن کی علامت ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا نہ صرف جواز بلکہ وجوب ثابت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مخصوص ایام میں عظیم اجر و ثواب اور دوچند ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس میں سے آج کا دن اربعین کا دن وہ دن ہے کہ جس میں کچھ بنی ہاشم جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ کربلا زیارت امام حسین علیہ السلام کو پہنچے تھے، اور اسی روز اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا تھا۔ اختلاف روایات میں ضرور پایا جاتا ہے، مگر اربعین کے دن کی زیارت کے لیے صریحی طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت موجود ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ مسلمان، خاص طور سے مسلمانوں کی طرف سے، کہ آپ لوگ قبروں کی زیارت کیوں کرتے ہیں؟ وہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کی زیارت کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو کیا ملتا ہے، اور جس کی زیارت کر رہے ہیں مزور کو کیا ملتا ہے؟ جواب میں بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیتوں سے اور اسی طریقے سے سنت پیغمبر اور روایات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیارت کا جواز ثابت ہے۔ خود تاریخ لکھنے والوں نے، حدیث لکھنے والوں نے پیغمبر اسلام کے عمل کو نقل کیا ہے۔ اسد الغابہ اہل سنت کی کتاب ہے، جس کی 3 جلد کے صفحہ 386 پر جناب رسول خدا کے ایک معتبر صحابی، ایک پاک دامن صحابی، ایک پارسا اور راہب قسم کے صحابی جناب عثمان ابن مظعون کا تذکرہ ہے۔ عثمان ابن مظعون رسول خدا کے وہ پہلے صحابی ہیں جو جنت البقیع میں دفن ہوئے، اور انہی کے پہلو میں رسول خدا نے اپنے لال حضرت ابراہیم کو دفن کیا۔ جناب عثمان ابن مظعون کو نہ صرف پیغمبر اسلام بہت چاہتے تھے، بلکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی بہت چاہتے تھے۔ روایت کا فقرہ ہے، خود امام امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے ایک لال کا نام عثمان اس لیے رکھا ہے کیونکہ میں جناب عثمان ابن مظعون رسول خدا کے صحابی سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ یعنی ان کے نام پر، عثمان ابن مظعون کے نام پر اپنے لال کا نام عثمان رکھا تھا، نہ کسی اور عثمان کی محبت میں۔ یہ عثمان ابن مظعون جب رخصت ہو گئے تو پیغمبر اسلام نے تشییع جنازہ میں شرکت کی، اور دفن کرنے کے بعد قبر کے اوپر پیغمبر اسلام نے ایک پتھر علامت کے طور پر رکھا۔ یہ علامت یہ اس لیے نشاندہی تھی کہ جو لوگ قبر عثمان ابن مظعون پہ فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، وہ آ کر کے اس علامت کے ذریعے پہچان لیں۔ خود اسد الغابہ کا فقرہ ہے، کان یزورہ، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عثمان ابن مظعون کی زیارت کو آیا کرتے تھے۔ سوال یہ تھا کہ ہم قبروں کی کیوں زیارت کرتے ہیں؟ سوال یوں ہونا چاہیے کہ غیر معصوم کی آپ لوگ زیارت کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم غیر معصوم کی زیارت کرتے ہیں رسول خدا کی سیرت کی روشنی میں، اور معصومین کی زیارت کرتے ہیں ان کے فرامین اور ان کے ارشادات کی روشنی میں۔ امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اسلام نے مخاطب کر کے فرمایا تھا، یا علی لتقتلن بالعراق وتدفن بها، اے علی آپ کو عراق میں شہید کیا جائے گا
और आप वहीं दफन किए जाएंगे। ये रवायत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नक़ल हुई है जब आप 6-7 बरस के थे। इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ये नहीं सवाल किया कि मुझे क्यों कत्ल किया जाएगा, कौन कत्ल करेगा, किस जुर्म में मुझे शहीद किया जाएगा और क्यों इराक़ में दफन किया जाएगा, बल्कि इमाम ने रसूल इस्लाम को मुखातब करके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मा लिमन ज़ार क़ुबूरना व अम्मरहा व तआहदहा। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं इराक़ में दफन किया जाऊँगा, यहाँ अहले बैत जहाँ मुख्तलिफ़ जगह दफन किए जाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐ अल्लाह के रसूल, हमारी क़ब्रों की ज़ियारत करने वालों के लिए क्या अज्र है? सिर्फ़ क़ब्रों की ज़ियारत का बयान नहीं है, सिर्फ़ क़ब्रों की ज़ियारत के लिए अमीरुल मोमिनीन सवाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरा और तीसरा फ़िक्रा भी काबिल तवज्जो है। फरमाते हैं व अम्मरहा, और हमारी क़ब्रों की तामीर करता रहेगा, उसके लिए क्या अज्र व सवाब है। तीसरा फ़िक्रा व तआहदहा, 1-2 बार नहीं मुसलसल हमारी क़ब्रों की ज़ियारत करने के लिए जो शख्स आएगा उसके लिए क्या अज्र व सवाब है। अमीरुल मोमिनीन ने बैक वक्त 3 सवाल किए। एक तो क़ब्रों की ज़ियारत का सवाल, यानी मासूमीन यानी अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की ज़ियारत में अल्लाह ने अज्र व सवाब रखा है। इमाम अमीरुल मोमिनीन रसूल इस्लाम की ज़बानी वो अज्र व सवाब जानना चाहते हैं। दूसरे, क़ब्रें 50 साल 100 साल के बाद, कुछ अरसे के बाद ज़मीन के बराबर हो जाती हैं, क़ब्रों का निशान मिट जाता है। इमाम चाहते हैं कि मेरी क़ब्र का निशान बाक़ी रहे। सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह मा लिमन ज़ार क़ुबूरना व अम्मरहा, और हमारी क़ब्रों की तामीर करता रहे उसके लिए क्या अज्र व सवाब है। यानी इमाम चाहते हैं कि हम अहले बैत के निशान क़ब्र बाक़ी रहें ताकि हमारे चाहने वाले हमारी क़ब्रों की ज़ियारत के लिए आते रहें। और तीसरा फ़िक्रा, या रसूल अल्लाह, अज्र व सवाब क़ब्रों की ज़ियारत के साथ और क़ब्रों की तामीर के साथ व तआहदहा, और जो पै दर पै मुसलसल हमारी ज़ियारत के लिए आए उसके लिए क्या अज्र व सवाब है। ये सवाल ख़ुद बतला रहा है कि इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ये नहीं सवाल कर रहे हैं कि क़ब्र की ज़ियारत जायज़ है या नहीं, बल्कि ये सवाल है कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये तो मुझे पता है कि क़ब्रों की ज़ियारत जायज़ है, ये भी मुझे पता है कि हम मासूमीन की क़ब्रों के ज़ियारत करने वाले लोग होंगे। मुझे पूछना ये है कि हम अहले बैत की क़ब्रों की ज़ियारत करने वाले मोमिनीन को क्या अज्र व सवाब दिया जाएगा। तो रसूल इस्लाम ने तफसील के साथ इस सवाल के जवाब में फ़रमाया, वो तफसील बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इस तफसील को बयान करने से पहले इजमाली तौर पर सुन लें कि ज़ियारत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम बिलउमूम और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिलखुसूस ज़ियारत करने वालों को अल्लाह उनकी उम्र को तुलानी कर देता है, उनके रिज़्क़ में बरकत दे देता है, उनको साहिबान औलाद बना देता है, और इस तरीक़े की बहुत सी दुनियावी फ़वाइद के अलावा पैगम्बर इस्लाम जो जवाब दे रहे हैं उस पर तवज्जो चाहता हूँ, इस तमहीद के साथ कि हम जानते हैं कि असहाब पैगम्बर सब के सब अच्छे नहीं थे। हम ये नज़रिया नहीं रखते असहाबी कुल्लुहुम उदूल, सारे सहाबी आदिल हैं, जी नहीं। कुरान मजीद ने सूरह मुनाफ़िकून ज़िक्र किया है। असहाब पैगम्बर में मुनाफ़िकीन थे, मदीने में असहाब पैगम्बर में मुनाफ़िकीन थे। बहुत से ज़ालिमों, सरकशों, जब्बारों, मुनाफ़िकों के ऊपर जो लानत की गई है वो लानतें असहाब पैगम्बर में बाज़ को शामिल हैं। तो सारे सहाबा अच्छे नहीं थे। यही वजह है कि हमारी किताब में तो है ही
مخالفین کی کتاب میں ہے کہ جب پیغمبر اسلام میدان محشر میں وارد بہشت ہوں گے یا وارد بہشت ہونے سے پہلے پر وہاں تشریف فرما ہوں گے کہ اتنے میں پیغمبر کے سامنے آپ کے بعض اصحاب کو کھینچ کر کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ پیغمبر انہیں دیکھ کر پہچان لیں گے اور ان فرشتوں سے کہ جو انہیں کھینچ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے سوال کریں گے کہ اے فرشتوں، یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ تو میری ہم نشینی اختیار کرنے والے ہیں، یہ تو میری بزم میں بیٹھنے والے صاحب اور صحابی ہیں، تم انہیں جہنم کی طرف کیوں لے جا رہے ہو؟ تو اس وقت وہ فرشتے من جانب اللہ رسول اسلام سے عرض کریں گے، یا رسول اللہ، یہ آپ کے صحابی ضرور ہیں، آپ کے نشین ضرور ہیں، آپ کی صحبت کا شرف پانے والے لوگ ضرور ہیں، لیکن انہوں نے آپ کے پاس بڑی بدعتیں رائج کی ہیں، آپ کے دین اور آپ کی شریعت سے منحرف ہو گئے تھے، یہ شرف صحبت پانے کا حق ادا نہیں کر سکے، نہ صرف یہ کہ حق ادا نہیں کیا بلکہ دین میں بدعتیں، شریعت کے احکام میں دخل و تصرف کیا ہے، اس لیے ہم انہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس وقت پیغمبر اسلام ان کے حق میں بد دعا کریں گے۔ کون کر رہا ہے بد دعا؟ رسول اسلام۔ کس کے اوپر؟ اپنے اصحاب کے اوپر۔ تو اصحاب کے اوپر بد دعا کرنا، پیغمبر نے سحقن کا لفظ استعمال کیا ہے جو لعنت سے کم نہیں ہے، ان کو برا بھلا کہنا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین میں دخل و تصرف کیا، بدعتیں رائج کی، تو مسلمان میں وہ طبقہ جو اصحاب پیغمبر کو، سارے اصحاب کو صحیح نہیں مانتا، منافق ان میں تھے، سرکش ان میں تھے، ظالم ان میں تھے، ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، تو یہ از روئے قرآن اور از روئے سیرت پیغمبر اسلام ثابت ہے۔ یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایسے اصحاب جو پیغمبر کی خدمت میں وارد ہوں گے مگر انہیں جہنم میں کھینچ کر کے لے جایا جائے گا، پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگ حوض کوثر پر جنت میں میرے پاس وارد نہیں ہوں گے۔ لیکن جب امیر المومنین علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہماری قبروں کی زیارت کرنے والوں کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ ہماری قبروں کی تعمیر اور تجدید کرنے والوں کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ ہماری قبروں پر بار بار آنے والوں کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے تفصیل سے جواب دیا تھا، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اولئک یا علی مخصوصون بشفاعتی، اے علی ابن ابی طالب، ایسے لوگ جو ہم اہل کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، ہماری قبروں کی تجدید بنا کریں گے، گنبد و بارگاہ کو سنواریں گے اور بار بار زیارت معصومین کو آئیں گے، اے علی میری شفاعت ان سے مخصوص ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا صریحی کلام سب نے لکھا ہے، فریقین نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر نے شفاعت کو اپنے گنہگار چاہنے والوں اور بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے۔ یہاں پیغمبر اسلام المخصوصون بشفاعتی کہہ رہے ہیں، مخصوص شفاعت پیغمبر زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے بلکہ بالعموم زائرین معصومین علیہ السلام کے لیے ہے۔ دوسرا فقرہ جو ایک قسم کی ضمانت ہے اور جو میں نے ابھی تمہید باندھی تھی کہ اصحاب پیغمبر حوض کوثر پر وارد نہیں ہو سکیں گے، بدعتی اصحاب، ظالم اصحاب، منافق اصحاب رسول خدا کے پاس سے کھینچ کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، لیکن معصومین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا والواردون حوضی، یہ لوگ حوض کوثر پر میرے پاس ضرور وارد ہوں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے معصومین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اجر و ثواب بیان کیا، اور یہ اجر و ثواب صرف دنیاوی اجر نہیں ہے بلکہ اخروی ثواب بھی ہے۔ اجر کا تعلق
دنیا سے بھی ہو سکتا ہے، آخرت سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ثواب ظاہر ہے کہ اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ یہ لوگ یعنی معصومین علیہم السلام کی زیارت کرنے والے نہ صرف یہ کہ میدان محشر میں پیغمبر اسلام کے پاس آئیں گے، بلکہ آپ کے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ یہی وہ مومنین ہیں جنہوں نے ثقلین کا اتباع کیا ہے، اور پیغمبر اسلام نے وہاں پر بھی یہ فرمایا ہے کہ اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں۔ ویسے ہی زائرین معصومین علیہم السلام اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے مومنین یقیناً حوض کوثر پر پیغمبر اسلام کے پاس وارد ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زیارت معصومین علیہم السلام پہ تھی اور قرآن مجید کی آیات اور پیغمبر اسلام کی سیرت اور ان کی احادیث سے نہ صرف یہ کہ زیارت کا جواز ثابت ہے بلکہ وجوب کی حد تک روایات موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اجر و ثواب کی طرف زیادہ رغبت دلائی گئی ہے اور زیارت امام حسین علیہ السلام کی خاص طور سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے باب میں، اجر و ثواب کے باب میں اور عظمت کے باب میں یہ کہہ دینا کافی ہے کہ وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت کر لیتا ہے، خداوند متعال اسے کم سے کم 50 گنہگار، وہ گنہگار جو جہنمی ہو چکے ہیں، ان کے لیے شفاعت کا حق عطا کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ انسان خود شفاعت کا محتاج ہو، روایات میں ذکر ہوا ہے سابقہ قومیں، انبیاء کی قومیں، حتیٰ ذکر ہوا ہے خود انبیاء بھی شفاعت کرنے میں محتاج ہوں گے پیغمبر اسلام کے، یعنی ہمارے نبی کی شفاعت اس قدر وسعت رکھتی ہوگی کہ ترک اولا کرنے والے بعض انبیاء بھی رسول اسلام کی شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ مگر کیا کہنا زائرین امام حسین علیہ السلام کا کہ ارشاد ہوتا ہے قبلا شفاعتہ فی 50 مذنبا، زیارت امام حسین علیہ السلام کر لینے والا مومن اس قدر پاورفل ہو جائے گا کہ وہ 50 مذنبین گنہگاروں کی شفاعت کر سکے گا۔ ظاہر ہے کہ جو خود جنت میں داخل ہو پھر اسے شفاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں گفتگو ہو رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو گنہگار ہیں اور اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہونے والے ہوں گے۔ ایک ادنا مومن جو زیارت امام حسین علیہ السلام کر چکا ہے، اسے خداوند متعال 50 مذنبین اور گنہگاروں اور جہنمیوں کے حق میں شفاعت کا حق دے گا اور پھر وہ شفاعت کرے گا اور وہ جنتی بن جائیں گے۔ یہاں تک کہ روایت کا فقرہ ہے کہ وہ زائر امام حسین علیہ السلام اپنے غلام و کنیز کے بارے میں بھی شفاعت کر سکے گا۔ غالباً پہلے زمانے میں وہ لوگ جو غلامی اور کنیزی کے امور انجام دیا کرتے تھے بہت زیادہ دیندار یا مذہبی نہیں ہوتے تھے، بہت سے ایسے بھی تھے جو دین اسلام سے آشنا تک نہیں تھے۔ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے دین سے آشنا کیا اور آزاد کر دیا، جیسے کہ امام سجاد علیہ السلام کے حالات زندگی میں ملتا ہے۔ یہاں گفتگو مومن کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کر سکا ہے وہ ایسے 50 کم سے کم 50 نہ جانے کتنے لوگوں کی شفاعت کر سکے گا، لیکن کم سے کم ایک زائر 50 گنہگاروں کی شفاعت کر سکے گا۔ ظاہر ہے کہ شفاعت کرنے والا خود اگر گنہگار ہوگا، خود اگر حقوق الناس اس کی گردن پہ ہوگا تو پھر وہ خود ہی مشکلات میں گھرا ہوگا، تو کیسے دوسروں کی شفاعت کر سکے گا؟ تو اس کے لیے جواب سنیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مومن کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے توفیق حاصل کر سکا، جعل ذنوبہ جسرا، اس کے سارے گناہ کو علی باب دار، جب وہ گھر سے نکلتا ہے دروازے سے باہر قدم رکھا، وہ پہلا قدم جو اپنے گھر سے زائر امام حسین علیہ السلام رکھتا ہے وہ زمین پر نہیں رکھتا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک طالب علم جب گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اس کے قدم بظاہر زمین پر پڑ رہے ہوتے ہیں، سڑک پر پڑ رہے ہوتے ہیں، مگر در حقیقت اگر نگاہ بصیرت اور ہماری معنوی نگاہیں
वाह हो जाएं तो हम देखेंगे कि तालिब इल्म का कदम फ़रिश्तों के परों पर पड़ रहा है। वैसे ही इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो इला ज़ुनूबहु जिस्रन अला बाब दार ही, उसके सारे गुनाह को जहाँ से जब अपने घर से निकलता है तो एक पुल की तरह से बना दिया जाता है। ज़ाहिर का कदम बज़ाहिर ज़मीन पर पड़ रहा होता है, लेकिन वाक़े में उसका कदम अपने गुनाहों के ऊपर पड़ता होता है। सुम्मा अबरहा, इमाम फरमाते हैं आप देखते रहते हैं, मुशाहिदा करते रहते हैं, पुल से इंसान गुज़र जाता है, पुल को पीछे छोड़ देता है। इमाम फरमाते हैं कि ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दर वाक़े दर हकीकत अपने घर के दरवाज़े से पहला कदम जो निकालता है और करबला तक पहुंचता है, तो करबला तक पहुंचने से न जाने कितनी पहले उसके सारे गुनाह पुल की तरह से पीछे छूट जाते हैं। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई भी गुनाह बाकी नहीं रह जाता। मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़रा के कलिमात एक दो रवायत में नहीं, मुतअद्दिद रवायत में ज़िक्र हुए हैं कि ज़ियारत मासूमीन बिलउमूम, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने वाला बिलखुसूस मोमिन वो है कि जिसके साबिक़ा गुनाह भी माफ़ कर दिए गए हैं, आइंदा जो गुनाह करेगा वो भी माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमें गुनाहों की छूट है, नहीं। याद रखें, जिन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने इस कदर अजर व सवाब बयान किए हैं, उन्हीं मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने ये भी बयान किया है कि हुकूक़ुन नास को अदा करना, लोगों के हक़ में जुर्म व जनायत करना, उसकी सफाई भी ज़रूरी है। हक़्क़ुन नास, खुदा भी उस वक्त तक नहीं माफ़ करेगा जबकि लोग माफ़ न करें। ये और बात है कि ज़ाहिरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ज़ाहिरीन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम इस कदर अजर व सवाब पा जाएंगे कि वो जिन लोगों के हक़ में गुनाह, जिन लोगों के हक़ में जुर्म व जनायत कर चुके होंगे, उन्हें राज़ी करने में कामयाब हो जाएंगे। यकीनन ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सईद है, ज़िंदगी भी सईद, मरने के बाद भी वो सईद है और वो जन्नती है। लिहाजा हक़्क़ुन नास यूँ ही नहीं चला जाएगा, बल्कि खुदावंद मुताल उसे मौका देगा, उस मोमिन को, और वो मोमिन अपने उन लोगों को के हक़ को अदा कर सकेगा कि जो दुनिया में कामयाब नहीं हो सका है, और अगर इसके बावजूद उसको परेशानी का सामना होता है तो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हैं, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हैं, वो उन मोमिनीन को, उन लोगों को राज़ी करा लेंगे कि जिनके हक़ इस ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हैं। बहरहाल इमाम फरमाते हैं गुनाहों को पुल की तरह करार दे दिया जाता है, और ये कौन करता है? खुदावंद मुताल। और पुल इंसान छोड़ करके अपने मकसद की तरफ रवाना हो जाता है, वैसे ही ये गुनाह सब के सब पीछे रह जाएंगे और ज़ियारत करने वाला मोमिन जन्नत तक, अपने मकसद तक पहुंच जाएगा और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शरफ़ हासिल करेगा। हमें ज़ियारत करने की जिस तरह से तरग़ीब दिलाई गई है, उसी तरीक़े से ज़ियारत के असबाब फ़राहम होते हुए, ज़ियारत की इस्तिताअत होते हुए तर्क ज़ियारत से बहुत ज़्यादा डराया गया है। बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ हमें इस अमल से बाज़ रखा गया है, यानी तर्क ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम न हो पाए। इमाम का सहाबी इमाम की खिदमत में पहुंचा, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर गुफ्तगू थी। जब ये गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची कि अगर कोई ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असबाब होते हुए, इस्तिताअत होते हुए छोड़ दे तो उसके लिए क्या है? तो इमाम ने फरमाया, अन जवार मुहम्मदिन व आल मुहम्मदिन तबाअदु। इस इबारत के तर्जुमे से पहले मैं आप हज़रात की खिदमत में
तबाअदु, तबाउद और मुबाअदा, ये वो कलमे हैं कि जो अरबी अदब में बाब मुफ़ाअला और बाब तफ़ाउल के उन्वान से मशहूर हैं, जिसमें दो तरफ़ा अमल होता है। जैसे मुबाहसा, दो शख्स तीन शख्स आपस में बैठकर इल्मी गुफ्तगू करते हैं तो उसके लिए मुबाहसा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से मुकालमा, कई आदमी आपस में जब गुफ्तगू करते हैं तो मुकालमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही मुबाअदा वहाँ इस्तेमाल होता है, तबाउद वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ दो तरफ़ा दूरी हो, यानी तरफ़ मुकाबिल भी दूर जा रहा हो और आप भी उससे पीछे हट रहे हों। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने की इस्तिताअत रखने के बाद जो मोमिनीन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर नहीं जाते, अगर बीमारी का उज़्र है, अगर कमज़ोरी का उज़्र है, अगर मसाफ़त, पासपोर्ट, वीज़ा और किसी और दीगर असबाब की बुनियाद पर नहीं जा पा रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन इस्तिताअत होते हुए अगर वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं करेंगे तो उनकी सज़ा मुकर्रर है। वो सज़ा भी कैसी? तवज्जो, वअन जवारे मुहम्मदिन व आल मुहम्मद फिल जन्नते तबाअदु। फिल जन्नते की क़ैद से पता चला कि मोमिन अपने ईमान और अमाल सालेह की बुनियाद पर अगर जन्नत में चला भी जाए तो उसे शरफ़ मुलाक़ात, शरफ़ ज़ियारत मुहम्मद व आल मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम जन्नत में नसीब नहीं होगा। और न सिर्फ़ ये कि जन्नत में उनकी मुलाक़ात और उनकी ज़ियारत नहीं हो पाएगी, तबाअदु बतला रहा है कि ये भी कतराएगा अहले बैत की मुलाक़ात से, क्योंकि उनके हक़ में कोताही कर चुका है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ में कोताही कर चुका है और ख़ुद अहले बैत भी उससे दूरी अख्तियार करेंगे। यानी ईमान की बुनियाद पर जन्नत में जाने वाला मोमिन जन्नत में जाएगा तो, लेकिन असबाब के फ़राहम होते हुए ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम न करने वाले मोमिनीन जवार मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से दूर रहेंगे। और भी मज़म्मत के कलिमात ज़िक्र हुए हैं। मैं यहाँ पे उन कलिमात को ज़िक्र करने के बजाय ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बीमारी की वजह से ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कमज़ोरी की वजह से ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शरफ़ नहीं पा रहे हैं, अगर आप किसी और वजह से ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं कर सकते, तो हुक्म ये है कि आप नियाबत में ज़ियारत करवाइए। सहाबी इमाम से सवाल करता है कि मौला, अगर मेरे लिए इम्कान नहीं है या किसी के लिए इम्कान नहीं है कि वो करबला पहुंच सके, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर सके, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? क्या वो नियाबत पर किसी को भेज सकता है और उसे अजर व सवाब मिलेगा? तो इमाम ने पहले तो ये इरशाद फरमाया, बेनफ्स ही वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने के लिए जाए, ये आज़म है। आज़म से गए अफ़ल तफ़ज़ील है, जिसका मतलब ये है कि नियाबती ज़ियारत में अजर व सवाब है, अज़ीम अजर व सवाब है, लेकिन नफ्स से नफीस ज़ियारत के लिए ख़ुद जाए, ज़हमतें बर्दाश्त करे, बीमारी होते हुए, खौफ होते हुए, परेशानी होते हुए भी अगर इंसान जा सकता है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, तो ये उसके लिए आज़म है। व खैरन इंदा रब्बिह, और पेश परवरदिगार अल्लाह की बारगाह में ख़ुद ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने वाला इंसान बेपनाह अजर व सवाब पाएगा। ये खैरन, ये भी अफ़अल तफ़ज़ील का सेगा है, जिसका मतलब ये है कि अगर इंसान किसी को नायब बना करके भेजता है तो उसको अजर व सवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर ख़ुद जाए ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो उसके लिए बेपनाह अजर व सवाब है। रावी सवाल करता है कि मौला, ऐसे इंसान को जो ख़ुद ज़ियारत करने के लिए नहीं जा सकता, किसी को नायब बना करके भेजता है, या मसलन
आज के ज़माने में फ़ोन कर दिया, मैसेज कर दिया, किसी को नायब बना दिया, तो क्या अगर वो ज़ियारत में माल व दौलत सर्फ़ करता है तो उसे अजर व सवाब क्या मिलेगा? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिरहम के बदले में खुदावंद मुताल उसे कोहे उहद के बराबर अजर व सवाब देगा, उसके गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे और उसे उसके जन्नत में दर्जात बुलंद हो जाएंगे। तो देखा आपने कि तर्क ज़ियारत की इजाज़त नहीं है। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेनफ्स नफीस ख़ुद करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा असबाब फराहम ना हो, मुख्तसर माल है, किसी को नायब बना सकता है, तो उसके लिए इमाम ने फरमाया कि एक दिरहम राह ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में सर्फ़ करने वाले को जबल उहद कोहे उहद के बराबर अजर व सवाब दिया जाएगा। तो तर्क ज़ियारत की इजाज़त नहीं, ख़ुद ज़ियारत करना है, लेकिन नायब बनाया जा सकता है। मगर बहुत तवज्जो रहे, नायब बनाने में भी ऐसे शख्स को नायब बनाया जाए कि जो हक़ अदा कर सके, तमाम शराइत और ज़वाबित के साथ ज़ियारत करे। यूँ तो एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह कह देने से भी ज़ियारत हो सकती है, चाहे दूर से हो चाहे नज़दीक से हो। इतना ज़ियारत की है सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, लेकिन जो शरफ़ जो अज़मत मोमिनीन को अपने घर से ज़ियारत करने के लिए निकलने पर और करबला मुअल्ला पहुँचकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बराह रास्त ज़ियारत करने में अजर व सवाब है, इसका अंदाज़ा सिवाय मासूमीन की और कोई नहीं कर सकता। लिहाजा हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी भी हाल में तर्क ना हो। एक शख्स इमाम जनाब ज़ाहिरन ज़ुरारा या मोहम्मद इब्न मुस्लिम, इन्हीं दोनों बुज़ुर्गवारों में से कोई था, या कोई और ज़ाहिर सहाबी इमाम की खिदमत में पहुंचता है, इमाम से सवाल करता है, इमाम जवाब देते हैं। सवाल व जवाब क्या था? यही कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के हवाले से इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हैरत की बात है, ताज्जुब की बात है कि हमारे चाहने वाले, हमारे शिया कुछ ऐसे भी हैं जो साल 2 साल तक ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़ देते हैं। लफ्ज़ों पे गौर करिए, इमाम फरमाते हैं हमारे शियों में से, हमारे चाहने वालों में से बाज़ शिया ऐसे भी हैं जो साल 2 साल तक ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं जाते। तो तड़प करके सहाबी ने पूछा, या ऐ फ़र्ज़ंद रसूल खुदा, ऐसे शियों की तादाद तो बहुत है, 1-2 नहीं, पता नहीं कितने ऐसे चाहने वाले आपके, शिया कहलाने वाले आपके बहुत हैं ऐसे कि जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़ देते हैं। तो इमाम ने फरमाया, ऐसे शिया अपना नुकसान कर रहे हैं। वो शिया हैं, वो अहले बैत के चाहने वाले हैं, वो मोमिन हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपना नुकसान कर रहे हैं और जवार मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से दूरी के असबाब फराहम कर रहे हैं। जन्नती हैं, मोमिन हैं, शिया हैं, लेकिन इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए ताज्जुब और अफसोस का इजहार किया है। इससे पता चलता है कि हमें अगर असबाब फराहम हैं, अगर मौजूद है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए पहुँचना है। चाहे खौफ हो, चाहे बीमारी हो, चाहे और कोई मुश्किलात हो, मुश्किलात से लड़ करके, परेशानियों से लड़ करके ज़ियारत करने वाला मोमिन यकीनन बेपनाह अजर व सवाब का हक़दार होता है। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आदाब में यूँ तो बहुत ज़्यादा आदाब बयान किए गए हैं। शहीद अव्वल ने अपनी किताब अद-दुरूस-उश-शरइय्या में 14 ख़ास आदाब को ज़िक्र किया है, लेकिन इन 14 आदाब को आगे बढ़ाते हुए रवायात की रोशनी में, सीरत मासूमीन की रोशनी में, जनाब मुहक्किक़ तबरसी
साहिब मुस्तदरकुल वसाइल तबरसी नूरी अपनी किताब आखिरी किताब जो उन्होंने तहियतुज़ ज़ाइर के नाम से लिखा है, उसमें आपने 43 आदाब ज़ियारत मासूमीन और बिलखुसूस ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बयान किए हैं। उन आदाब में एक अहम चीज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हम गम के साथ, खौफ में गुबार आलूद, बाल बिखरे हुए, इन सूरतों में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करने का हुक्म है। और मासूमीन की ज़ियारत के लिए आदाब में एक अदब गुस्ल है, लेकिन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में घर से निकलते वक्त गुस्ल है, रोज़ा है और दीगर आदाब हैं। लेकिन जब आप करबला पहुँचें तो उसी लिबास में, अलबत्ता नजिस ना हो, उसी लिबास में, उसी गुबार आलूद हालत में, कपड़े पर गंदगी हो, नजासत नहीं, सर पे सहरा की खाक, सड़क गाड़ियों के गर्द गुबार की वजह से अगर आपके बाल पर, आपके लिबास पर गर्द गुबार है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी हालत में होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि इमाम गर्द आलूद, इमाम बहुत ही कर्ब के साथ, दर्द के साथ, गम के साथ शहीद किए गए हैं। भूखे प्यासे रहना चाहिए, क्योंकि इमाम को भूखा प्यासा शहीद किया गया है। लिहाजा ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बिलखुसूस इन आदाब का लिहाज रखना चाहिए। जितने आदाब का लिहाज रख सके बेहतर है। वसल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।